भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्व या कि जड़ ऊपर है और या कि शाखाएं नीचे है, और शाखा पत्र इत्यादि करके ये जितनो विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांड को, ये जगत को, सृष्टि को हो रहे है, वो सब अधोमुखी है। अगर मनुष्य को अपना विकास खोजना तो ऊर्ध्वमुख जानो पड़ेगा, ऊर्ध्वगामी बनना पड़ेगा। यदि अधोगामी हो रहे हो तो वो पतन हो। तो श्री भगवान ने अपन को ये बात गीता में समझाई। ऐसे ही तुम या में देखो, अगर या में प्रोग्रेस करनी है मनुष्य को अपनी कामनान के आधार पे, तो वो एंटी सर्कल जाएगा। देखो वहां के एरो बन रहे हैं, सर्कल में मार्क करो पहले। वो धर्म में सु अर्थ में जा रहे हो, या अर्थ सु काम जा रहे हो और काम सु मोक्ष जा रहे हो, मोक्ष सु धर्म और धर्म सु अर्थ और अर्थ सु काम और काम में सु मोक्ष, ऐसे नहीं जा रहे हो। क्यों? वो पूछ के देखो क्यों, प्रश्न करो। क्योंकि मोक्ष और धर्म के बीच में कोई एरो नहीं है, नहीं तो तुम दोनों तरफ से घुमा सकते थे बात को, पर वहां स्पेस नहीं है। ग्राफ बनाने वाले ने तुमको स्पेस नहीं दिया है, यानी तुम एंटी सर्कल, तुम सर्कल वाइज नहीं घूम सक रहे हो, वो एंटी सर्कल ही चल रहे हो। ख्याल आया ना? ये कामनान को सारो स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो कामनान को स्ट्रक्चर है, पूरा वर्तुल हमारी कामनान को, अनंत असंख्य कामनान को, बाकी अंदर हमारी कुछ कामनाएं जो हैं उनको नाम धर्म है, कुछ कामनाएं जो है हमारी अर्थ है, कुछ कामना जो है वो हमारी काम है, और कुछ कामनाएं हमारी मोक्ष संबंधी है। ऐसे डिवीजन है। इससे फॉर एग्जांपल समझाऊं, ये अपन लोग जितने यहां बैठे हैं, कमो बेशी एकाध दो व्यक्ति की मैं अपवाद की चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर दरेक व्यक्तिए પોતાના જીવનમાં કાંઈ ક્ષણ એવા અનુભવ્યા હશે કે જ્યારે મનમાં કાંઈ ગમતું ના હોય, એક શૂન્યતા આવી ગઈ હોય। તમારી અભિરુચિના જેટલા પણ પાસા હોય, એ પાસાનો પણ તમે વિચાર કરી જોયો હોય કે ભાઈ હવે આ કરું કે આ કરું કે ત્યાં જઈ આવું કે બહાર નીકળું, કોઈ વસ્તુથી તમને એમ લાગશે, તમને જેટલા વિચાર કરશો તો જવાબ અંદરથી આવશે કે નહીં, એમાં મજા નહીં આવે, એ નથી કરવું, અત્યારે આવું નથી ગમતું। એ કાંઈક એવી વિરતિના ક્ષણ આવે છે કે એ તમારા જીવાત્માના જે જીવ ચેતના છે, એ ચેતનાનો આખો એક રિફ્લેક્સ સિસ્ટમ છે આખો। એ જીવ ચેતના તમને ક્યારેક એવા સ્પાર્ક્સ, ક્યારેક એવા સંકેત આપી રહી છે કે મૂળ એનો જે સ્વભાવ છે એ ખરેખર આ તમામ સર્જનના સ્થૂળ પાસાઓથી ઉપર ઉઠવાનો છે, વિરત થવાનો છે, એનાથી ઉદાસીન થવાનું છે। કોઈ વસ્તુ જ્યાં ન ગમે, અને આઈ એમ પ્રીટી શ્યોર, અગેન હું કહું છું કે અપવાદની વાત નથી કરતો, પણ તમને દરેક વ્યક્તિને કોઈક સ્થળે તમારા જીવનના કોઈક જંકચરે આવા 5-10 મિનિટના અનુભવો ચોક્કસ થયા હશે। એટલે એક એવી જે એક અવસ્થા આવી રહી છે કે એ વખતે જે મન ઈચ્છે છે, એ મન શું ઈચ્છે છે, એ છે ને એ મોક્ષના બ્રેકેટની કામના છે। મોક્ષમાં પણ આવી જ એક અનુભૂતિ, મોક્ષમાં પણ એક આવી જ ઈચ્છા, જ્યારે તમામ સ્થૂળ કામનાઓથી વ્યક્તિ ઉપર ઉઠે, એ મોક્ષની દિશા છે। એ મોક્ષની અવસ્થા નથી, પણ મોક્ષનો ક્યાંક જે ડાયરેક્શન છે એ એનાથી દેખાય છે। એને બીજી રીતે સમજાવું, કદાચ તમને ઘણા લોકોને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ જે લોકો કોમ્પ્યુટરને જાણે છે, થોડુંક પણ કોમ્પ્યુટરનો અનુભવ છે, એમને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે જે ઇન્ટરનેટ ઉપર જવા માટે આખો જે સિસ્ટમ છે, એની અમુક સાઇટો છે કે જેમાં તમારા ગામડાને પણ તમને જોવું હોય તો એ પણ એના ઉપર આવી જાય, એનું મેપિંગ આવી જાય। તમે જે આખો જે એરિયા જોવા માંગતા હો દુનિયાની, આખી દુનિયાનું, એ જોવા હમણાં ગૂગલ ઉપર મેં આપણું ઘર જોયું, ગોકુલનું, આ ગોકુલના ઘરની આખી મેપિંગ એના ઉપર આપવાથી, પણ એ મેપિંગ એટલી ડિસ્ટન્ટ હોય કે આપણને બહુ ધ્યાનથી એને સમજવું પડે, બહુ જ ખૂબ જ કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ ને, એ એનલાર્જ થાય છે, પણ એને ઝૂમિંગ કરીને પણ, એને એનલાર્જ કરીને પણ આપણને એક્ઝેક્ટલી એ સિચ્યુએશન સમજવી પડે છે। એટલે એવા જે 5-10 મિનિટના ઉદાસીન ક્ષણ આવે છે ને, એને એનલાર્જ કરશો, જ્યારે તમે એને ઝૂમ કરશો તો તમને મોક્ષની દિશાની કંઈક વાત ખ્યાલ આવશે, એવું કહેવા માંગુ છું। ઇફ
ઇફ યુ કુડ ગેટ માય પોઈન્ટ. મારો મતલબ કાંઈ કે સમજમાં આવ્યું તમને? એટલે હું શું કહેવા માંગુ છું કે મનુષ્યમાં અનેક ઈચ્છા છે. દાખલા તરીકે જ્યારે તમે સહજ નીકળતા હો, પાસ થઈ રહ્યા હો, અને કોઈક એવું બાળક હોય કે જે ખૂબ જ કષ્ટની અવસ્થામાં હોય અને એક ક્ષણમાં જસ્ટ બાય ધ સ્ટ્રોક તમને તમારું દિલ ફરી આવે. ખ્યાલ આવે? કોઈક ગરીબ વ્યક્તિને જુઓ, કોઈ અસહાય વ્યક્તિને જુઓ, ઇવન ટીવી ઉપર તમે એવા દ્રશ્યો જુઓ કે જેનાથી તમારું મન અંદરથી એકદમ ઓગળવા લાગે, અંદરથી તમને એવું લાગે કે કંઈક થઈ રહ્યું છે આપણને. वो सब तुम्हारी जो फीलिंग है ना, वो कहीं तुम्हारे अंदर धर्म की कामना है, या बात को संकेत दे रही है. ये ध्यान रखिए. ऐसे ही तुम्हारे जितने भी अर्थ संबंधी काम, तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो सब तुम्हारे अर्थ के ब्रैकेट में आएंगी. मैं कहना कुल मिला के इतनी बात चाह रहे हूं कि तुम जब अपने सारी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को जब तुम मैपिंग करोगे, तो वो मैपिंग अल्टीमेटली तुम्हारी 4 डिवीजन में होगी: धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष. क्योंकि धर्म शब्द बहुत व्यापक है, क्योंकि अर्थ शब्द बहुत व्यापक है, क्योंकि काम शब्द बहुत व्यापक है, क्योंकि मोक्ष शब्द बहुत व्यापक है. मोक्ष शब्द कहीं एक जगह सीमित नहीं है. अपने भारतवर्ष में ऐसे भी दार्शनिक भय हैं, विशुद्ध पाशविक भोगवादी, पशु की तरह. उनने भोग को ही मोक्ष माना. उनकी चॉइस है, पर वो आपको मोक्ष कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जिन क्षण में बस देह में मजा आ रही है ना, बस वो मोक्ष है. यसु आगे वो क्या कह रहे हैं तुमको मालूम है? वो कह रहे हैं कि जब देह भोग करने में अक्षम हो जाए ना, तो डेलिबरेटली वो खत्म कर देना चाहिए. क्योंकि देह को प्रयोजन है भोग करना, उनके लिए वो मोक्ष है. એટલે उनकी ये जो कामना है, अल्टीमेटली वाकू अपन को कौन से ब्रैकेट में ले जाना पड़ेगा? मोक्ष. मोक्ष में डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास डिवीजन को ग्रुप है वो. अब वासु तुम्हारी मोक्ष की विचार नहीं मिल रहे हैं, डजंट मैटर, वासु कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो अपने आप को ये मान रहे हो कि ये परम सुख है, बस चलिए वो को मोक्ष के ब्रैकेट में ले आना पड़ेगा. तुम्हारा बालक चॉकलेट मांग रहे हो और तुम ये चाह रहे हो कि अब के अहमदाबाद में करोड़ रुपया का टर्नओवर भयो, नेक्स्ट ईयर 1.5 करोड़ पे पहुंचना चाहिए टारगेट. बेसिकली दोनों में क्या फर्क है बताओ? दोनों अर्थ की कामना है. वह चॉकलेट का अर्थ है, प्रयोजन है, और तुमको 1.5 करोड़ का प्रयोजन है. तुमको 1 से 1.5 आधा खोखा और बढ़ाना है. सो यू हैव गॉट मेनी प्लान्स. तुम्हारे पास बहुत बिजी रहने के रीजन से. अगर तुम्हारे पास इतने बिजी रहने के रीजन से, तो क्यों ये स्वीकारने तैयार नहीं हो कि वो बच्चा को चॉकलेट मांगने के लिए इतने ही बड़े बिजी रीजन से? वो कह रहे हो मैं चॉकलेट मांग रहा हूं, आई डोंट हैव एनी अदर पर्पस. मेरे पास ये कारण है, मेरे पास, मैं यहाँ पर फ्री नहीं हूं क्योंकि मुझको चॉकलेट चाहिए. अल्टीमेटली दोनों ही छोड़ अर्थ के. ख्याल आ रहा है? सवेरे चाय पी रहे हैं पति पत्नी, तो पति ने कुछ खाने की फरमाइश कर दी. पत्नी ने कही कि नहीं, आज तो मैंने कल कोई सेटल दूसरी रेसिपी कर दी नहीं, आज वो होगी, फिर कल तुम्हारी बात होगी. दोनों की बातें अर्थ के ब्रैकेट की. वैसे अर्थ और काम में बहुत कम फर्क है. मैं आगे वही को स्टेप को ले रहे हूं, पर ये सारी चीजें वही में है. यानी आनंद की बात यह है कि एक बालक चॉकलेट मांग रहे हो और दूसरो बालक, क्योंकि हित नहीं जान रहे हो ना, सच्चो हित तो नहीं जान रहे हो, दूसरो बालक 1 खोखा को आधो खोखा और ऐड करना चाह रहे हो, 1.5 खोखा चाह रहे हो. बोथ आर सेलिंग इन दी सेम बोल. वो दोनों एक ही विचार है. अब देखो, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं, भेद कर सको तो करियो, नहीं तो मैं स्पेल आउट तो करूंगा ही, कहूंगा ही बाबू. बहुत सारे बच्चों की आदत ऐसी हो, कंडीशनिंग डेवलप हो जाए शुरुआत से, कि द मोमेंट तुमने वो बहुत रो रहे हैं, एकदम
चीख रहे हैं, टेंट्रम्स फेंक रहे हैं, बहुत छोटे बालक, शिशु, और तुमने घोड़िया में रखे हो और एक दो झोटा लगे नहीं के परमानेंट। या कभी ऑब्जर्व करियो, बच्चा लिटा दियो तुमने घोड़िया में, बाकी ऊपर के वो फौना को लटकन को देख रहे हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड है वहां। या तुमने एक झुंझुनावा के सामने बजाना शुरू कर दिया, एंड ही इज इन्वॉल्व। बात यह है कि अब सेंटरों को बहुत दिन हो गए, कोई दिन कुछ ऐसी बातें हों कि ई क्लास मर्सिडीज कोई दिन खड़ी हो जाए सामने आकर, बहुत दिन से ट्रेन में रखड़ रहे हैं, कभी टिकटें इतनी सस्ती हो जाएं या कोई हमको कहे कि चलो भाई फ्लाइट पे चले जाएंगे। बेसिकली इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं। एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हो जाए दरवाजे पे और एक झुंझुना सू मन बहल जाए, बात दोनों एक है, पर दोनों में बहुत बड़ा पोलराइजेशन है, लेकिन दोनों एक ही क्लासिफिकेशन की कामनाएं हैं। कुछ वाकु शब्दन की कामना, कुछ गुनगुनाहट की कामना, कुछ ध्वनि की कामना, बस वो कामना वाके कानन को बस भा रही है, और कहीं वाकु नींद के झोंकाएं आने लगे। वो घोड़िया के मूवमेंट जो है वाके, कहीं माँ की गोद में वाकु मूवमेंट की कहीं कोई ऐसे स्पर्श हो गए कि वो आदत वाके अंदर डेवलप्ड हो गई, वह शैशव में ही उतने सी अवस्था में, और वो घोड़िया के कपड़ा में लेटते 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 वाकु आनंद आ रहे, झोंक रहे। वो अपने शेख चिल्ली ख्वाब में चाय की कप चलते रहे कि आज न सही कल, कल न सही परसों ई क्लास खड़ी तो करनी है मर्सिडीज। बात है कि कोई फर्क नहीं है। ये कामनान को तंत्र बहुत बड़ा है, ये काम है जहां कहीं वासना अटकी भाई, और यही की वासना नहीं है। अगर मेरे जैसे इंसान से पूछी जाए, बहुत सारे ग्रंथन के पढ़ने की वासनाएं अभी भी मेरे अंदर पल रही है। जो ग्रंथ मेरे चेरिश्ड हैं, जिनको मैं बहुत धीरज से नहीं देख पाया हूं या जिनको विमर्श नहीं कर पाया हूं, वो अपने मत के हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रंथन को देखने की वासनाएं आज भी मेरे अंदर पल रही हैं। कभी कभी जब मैं अंग्रेजी की पुस्तकन की दुकान पे जाऊं तो मुझको श्रीमती पूछे ये पुस्तकें आप लाए, आपको लगे कि आप कोई दिन इनको खोल पाओगे? मैंने कहा श्रीमती, मैं भी मानूं तेरी बात कि जा अवस्था पे मैं पहुंच रही हूं और जो जा तरह के तंत्र में मैं बैठे हुए हूं, शायद मुझको जीवन मुझको अवसर नहीं भी है, पॉसिबल आई माइट नॉट गेट दोज मोमेंट्स कि जब मैं पुस्तक को खोल सकूं। गालिब एक बहुत अच्छी बात है, मदिरा पीने की वक़्त बहुत आदत है, वृद्धावस्था आ गई, बाकी आसपास वाले लोग कहने लगे कि भाई हटाओ ये सब साधन, या के पास क्या है, तो वो क्या कह रहे हो सुनो देखो, और वह को थोड़े दार्शनिक स्तर पे उठाओ, देखो फिर ये उठाने की बात कहां आ रही है, बात उठनी चाहिए। वो कहे कि वो हाथ को जुम्बिश नहीं, तुम्हारे यहां की जो जुम्बिश शब्द है ना, वो यहीं से आया है, मूवमेंट। वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। सागर कहवे सुराही को और मीना कहवे प्याले को उर्दू में। तो कह रहे हो कि वो हाथ को जुम्बिश नहीं, ये बात ठीक है कि मेरे हाथ में ताकत नहीं रही है कि मैं उठा के पीऊं प्याला, पर आंखों में तो दम है, आंख में तो अभी ज्योति रह गई है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। ये सागर और मीना भी रखे तो रहने दो, कम से कम मैं आंख से तो देखूं। बात इनकी बहुत सही है कि शायद मैं वो पुस्तक पढ़ सकूंगा नहीं, पर मुझको इतना संतोष तो है कि मेरी लाइब्रेरी में वो पुस्तक रखी भाई, पर सुनाऊंगे बात या लिए मैं भी जानूं कि शायद, पर अभी एक बहुत अच्छा ये तुर्की देश को एक लेखक है,
बहुत कम लेखक ऐसे भय, बहुत बड़े बड़े लेखकन में सु जिनको जीवित अवस्था में नोबेल प्राइज मिली। वो नोबेल प्राइज वाले अभी जीती। ये तुर्की देशन के आसपास एक इस्तांबुल करके बहुत बड़ा शहर है। वो शहर क्या देश है, वो एक तरह का इस्तांबुल, इट्स ए सिटी नेशन। पुराने इतिहास में को ऑटोमन एम्पायर की तरह से जानते थे। मैं न तो इतिहास में तुमको ले जाना चाह रहा हूँ, ना अपने इतिहास की बात को कहना चाह रहे हो, पर ये सब यूरोप के इतिहास और नक्शाएं सब मेरे आंखन में घूमे। अभी तुमको तो यहाँ सब तुमको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं। तो ये ऑटोमन एम्पायर की वो बात है। तो इस्तांबुल की कहना, मैं इनके बात को चाह रहा हूँ कि इनको मैंने कही कि ये पुस्तक आप क्यों से लाए। तो मैंने कही श्रीमती, या में इस्तांबुल की कहानी है, और इस्तांबुल विश्व के बड़े पुराने शहरों में, जैसे हमारा बनारस, जैसे हमारे ये मथुरा, जैसे पूना तुम्हारे वात्रफ, तो ये जो पुराने जो इतिहास के शहर हैं, जो अपने भारतीय पुराणन में जिनके वर्णन आए हैं, इनकी इस्तांबुल ऐसे तरह को शहर है। और इस्तांबुल के विषय में मैंने बहुत पढ़े हुए, या लेखक ने वह इस्तांबुल को कौन सी निगाह से देखो है, कितना बड़ा बुद्धिजीवी है, यानी वह इस्तांबुल के खंडहरन को कैसे देख रहे हो, वह इस्तांबुल की आज बची हुई बिल्डिंगन को कैसे रूप में देख रहे हो, वह के नक्शा को कैसे फील कर रहे हो, ये मैं या लेखक की चेतना से समझना चाहता हूं। आई डोंट नो मैं कौन से दिन पढ़ पाऊंगा, पर पुस्तक ले आया तो मेरी वासना कम से कम उतने अंश में पूरी हो गई। तो वासना के बहुत बड़े खेल हैं, कामना के बहुत बड़े खेल हैं। ये मैं कामना की बात कर रहा हूं, धर्म अर्थ की बात हो गई, अब ये कामना की बात चल रही। तो हमारी इतनी सारी कामनाएं और वासनाएं हों कि जिनको कहीं कोई अंत नहीं है। अब यह बात को देखो तुम कि ये सब सर्कल एक दूसरे से जुड़े भय, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। या लिए हम कोई ऐसे कंपार्टमेंट नहीं क्रिएट कर सके अपने अंदर अंतःकरण में कि जहां कामना के डिवीजन हो जाए। हर कामना एक दूसरे से ओवरलैपिंग है। धर्म की अर्थ, अर्थ की काम, काम की मोक्ष, मोक्ष की धर्म, धर्म की अर्थ, सब पे सब के लेयर चढ़े भाई, एक दूसरे में सब पूरा को पूरा मिक्सचर है, पूरा सब मिल रही हैं एक दूसरे से। इनको अलग पाड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि जब अपन इनको अलग कर सके। यानी मैंने सबको एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हुए समझाया है, दिखाया है तुम्हारे समझने के लिए। आई होप मेरी बात तुम तक पहुंच रही है। ठीक है, चलू ना आगे। ये बात इतनी यहां तक समझ में आ रही। अब देखो शास्त्र हमको क्या बता रहे हो है, वह बात को थोड़ा यहीं समझ लो, फिर अपन और आगे की बात पे चलेंगे। शास्त्र की एक बेसिक दृष्टि है, एक मौलिक आधार है शास्त्र को। शास्त्र कहवे कि जितनी तुम्हारी सत चेष्टा है, सत्व कोटि की, जितनी तुम्हारी सात्विक कोटि की चेष्टाएं हैं, जिनको आधार सत है, असत नहीं है। मेरी बात ख्याल आ रही है? तुम्हारी सारी चेष्टाएं मन, वाणी और देह की, जिनको आधार सत है, उन सारी चेष्टाओं को नाम है धर्म। हर चीज धर्म के सर्कल में आएगी जब तुम अपने बालक को देह धर्म की शिक्षा दे रहे हो ना। एक तुम्हारा 6 वर्ष को 7 वर्ष को बालक है, तुम वको मलमूत्र शुद्धि की शिक्षा दे रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो? तुम वाको कुछ धारण करा रहे हो, कुछ योग्यताएं धारण करा रहे हो, और योग्यता धारण करनो अथवा करानो, इन दोनों को नाम है धर्म। इतना व्यापक अर्थ में धर्म शब्द है। कोई भी चीज को जो आप धारण करा रहे हो या धारण कर रहे हो, वो धर्म है। आप अपने बालक को दंत धावन सिखा रहे हो कि दांत कैसे साफ करने, धर्म है। आप अपने बालक को स्नान करा रहे हो, नहाने से कैसे तरीका से नहावे के जैसे शुद्धि होए, वो नहानो सही रूप में, सही तरीका से नहानो सीखनो, ये भी धर्म है। अगर ये धर्म नहीं हो तो
तो हमारे धर्मशास्त्र में इन सबन के नियम भी नहीं आते। देयरफॉर धर्मशास्त्र सब बता रहे हो, हमारे मलमूत्र प्रक्षालन की प्रक्रिया बता रहे हो, हमारी शुद्धि की प्रक्रिया बता रहे हो, हमको खाने के बाद कितने कुल्ला करने चाहिए बता रहे हो, हमको जो है सो मलमूत्र त्याग के बाद कितने कुल्ला करने चाहिए ये बता रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंडलेस। ये सब बातें, ये सब धर्म है, ये सब धर्म की चेष्टा में आती है। तो जितनी भी हमारी सत चेष्टाएं हैं, मेरी बात फिर ध्यान दीजिए, जितनी चेष्टाएं मन वाणी और देह की हमारी सत कोटि की हैं, असत कोटि की नहीं है, उन सत कोटि की यानी जो हमारा विकास करने वाली है, हमको विनाश की तरफ ले जाने वाली नहीं हो। जो चेष्टाएं हमको अपने विनाश की तरफ ले जा रही हैं वो असत चेष्टाएं, जो चेष्टाएं हमको अपने विकास की तरफ ले जा रही हैं वो सत चेष्टाएं। और तमाम सत चेष्टाओं को नाम धर्म है। यानी ये शास्त्र बेसिकली ये मान रहे हो कि जहां चेष्टाएं धर्म में यानी धर्म रूप नहीं है। ख्याल आई मेरी बात? बेटू बैठ जाए। जो भी चेष्टाएं हमारी, जो चेष्टाएं धर्म रूप नहीं है, ऐसी अधर्म रूप अगर हमारी चेष्टाएं और उनसे अगर हमारी कोई भी समृद्धि बढ़ी तो वो सद अर्थ नहीं है, असद अर्थ है। शास्त्र का व्यू है। शास्त्र की बात समझिए पहले, बाल बोध समझने से पहले ये कुछ मुद्दाएं क्लियर करने बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी जो चेष्टाएं जो हमको विकासोन्मुखी नहीं कर रही हैं, जिनको आधार सत चेष्टा नहीं है, जिनको हम धर्म संज्ञा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी हमारी कोई भी अधर्म चेष्टा यानी अधर्म रूप चेष्टा सु यदि हमारी समृद्धि बढ़ी, यदि हमारी रिचनेस बढ़ी, अगर हम 10 पेटी सु 50 पेटी के मालिक बन गए तो 40 पेटी शास्त्र की दृष्टि से अर्थ नहीं है, वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। धन होएगा वो, पर पुरुषार्थ नहीं है, अर्थ रूपी पुरुषार्थ नहीं है वो, क्योंकि वो धर्म रूपी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं पाया। क्योंकि वो धर्म रूपी चेष्टांशु प्राप्त नहीं रहे, या लिए जो चेष्टाएं सदरूप हैं वो सदरूप चेष्टान को नाम ही धर्म पुरुषार्थ है। उन धर्म रूप चेष्टांशु जो कुछ भी हमारी कमाई होगी, जो कुछ भी हमारी प्रगति होगी, जो कुछ भी हमारा आर्थिक विकास होगा, वो अर्थ पुरुषार्थ कहो जाए। और वह अर्थ रूपी पुरुषार्थ सु जब भी सत्व रूप कामनान को हम भोग करेंगे, शास्त्र काम भोग के लिए, कामना भोग के लिए निषेध नहीं कर रहे हो। शास्त्र भी हमको हमारी कामनान के उपभोग को, वह उपभोग की हमको छूट दे रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, एक बात ध्यान रखिए, मनुष्य के सभी इंद्रियों के भोग के शास्त्र में विशद विवेचन किए हैं। और अगर ये विशद विवेचन नहीं किए गए होते, अगर ये विशद विवेचन नहीं किए गए होते तो वात्स्यायन महर्षि जैसे काम शास्त्र प्रकट नहीं होते, और वात्स्यायन मुनि जैसे महर्षि जैसे काम शास्त्र को उल्लेख श्री महाप्रभु भगवत लीला में उल्लेख उनको नहीं करते। परंतु वात्स्यायन जैसे महर्षि ने अगर इंद्रिय तर्पण को, यदि इंद्रिय भोग को, इंद्रिय तृप्ति को यदि मार्ग बताया है, तो वो मार्ग वासना नहीं है परंतु काम रूपी पुरुषार्थ है। क्योंकि वो काम रूपी पुरुषार्थ सु मनुष्य के, हमारे सदेह जीवात्मा को विकास बताया गया है, विनाश नहीं बताया गया। अगर विनाश बताए जाने वाला हो तो ना, तो आज मनुष्य को पशु और हैवान और राक्षस बनाने वाले
ये जो या वक्त ये जो आधुनिक पश्चिमी जगत सु आई भाई जो पोर्नोग्राफी को कल्चर चल रहे हो, ये वात्सायन की भी सारे ग्रंथन को पोर्नोग्राफी कहनी पड़ती, ये समझ के जाइयो यहां से। ये भी उतनी हल्की स्तर की सारी बातें हो जाती हैं, क्योंकि ये पश्चिम ने या अमेरिका ने और या पूरे यूरोप की सभ्यता ने मनुष्य को पशु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या लिए वो काम वासना है, पुरुषार्थ नहीं है। और जो काम को वर्णन महर्षि वात्स्यायन जैसे कर रहे हैं, वो काम पुरुषार्थ है। या में भी थोड़ा भेद है जो मैं ग्रंथ के संग आगे समझाऊंगा कि सच्ची पुरुषार्थता धर्म में कहां है, सच्ची पुरुषार्थता अर्थ में कहां है, सच्ची पुरुषार्थता काम में कहां है। ये बात रिजर्व में रखियो। एक बात या कि अंतिम एस्पेक्ट जो रह गई है वो मैं आगे के संदर्भ में कहूंगा। पर कुल मिला के हमारी वो सदरूप चेष्टाएं जिनको आधार धर्म है, वह धर्म रूपी हमारी सदरूप चेष्टांशु सिद्ध भयो जो अर्थ है, जो हमारी समृद्धि है, वो अर्थ पुरुषार्थ है। वह अर्थ पुरुषार्थ सु जो हम उपभोग कर हमारे मनुष्य देह के जो इंद्रिय हैं उनको कहीं भोग कर पा रहे हैं, तो वो काम पुरुषार्थ है। और वह धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थन के संयुक्त फोर्स सु वाके संयुक्त वाके सामर्थ्य सु जो हम अपने आप को हमारे जीवात्मा को मोक्षगामी बना पा रहे हैं, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। या लिए वो चेष्टाएं कल को कोई उठ के कोई ने कह दी नहीं कि नहीं बस देह को तर्पण होनो, देह को भोग होनो ही, देह से भोग कर लेनो ही मोक्ष है, वो मोक्ष नहीं माने जा सके, वो या लिए नहीं माने जा सके, क्योंकि वो जीवात्मा के सच्चे विकास में उन्मुखता नहीं ला रहे हो, विमुखता ला रहे हो। या लिए अब यहां तक की मेरी बात स्पष्ट भाई, तुमको सबको बोलो कि कुछ संदेह है तो फिर अपन वक्त दूर करके फिर आगे बढ़ते। इतनी बात हमको समझ में आ गई यहां तक। या लिए ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगो। जो सदरूप चेष्टाएं धर्म है वासु सदरूप अर्थ सिद्ध होएगो, और सदरूप अर्थ सु सदरूप काम होएगो, और सदरूप काम सु मोक्ष होएगो। या लिए भगवान काम को भी अपनो रूप बता रहे हैं, लेकिन क्या कह के कि जो शास्त्र में निर्दिष्ट काम है वो मेरो रूप है। ये गीता के वचन है, ख्याल आया कि नहीं? जो शास्त्र में अविरुद्ध है, शास्त्र में जाको विरोध नहीं, शास्त्र में जो कहो गयो है, ऐसो काम ही मैं हूं खुद। Therefore, धर्म भी भगवान है, अर्थ भी भगवान है, काम भी भगवान है, मोक्ष भी भगवान है। Therefore, क्योंकि वो धर्म भगवान है, या लिए वो धर्म पुरुषार्थ है। क्योंकि अर्थ भी भगवान है, या लिए अर्थ भी पुरुषार्थ है। काम भी भगवान है, Therefore काम भी पुरुषार्थ है। मोक्ष भी भगवान है, Therefore मोक्ष भी पुरुषार्थ है। पुरुष के कामना करने योग्य है, अयोग्य नहीं है। मेरी बात इतनी भाई स्पष्ट समझ में आ रही है सबको? अब ये चार्ट को अंतिम वाक्य अपन देखेंगे। Therefore पुष्टि मार्गीय जीव के लिए क्या धर्म है, क्या अर्थ है, क्या काम है और क्या मोक्ष है, वो अंतिम नीचे के वचन पे देखो कि पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्म। हमारी समस्त चेष्टाएं ऐसी बन जाएंगी कि जामे सु हमारो दासत्व दासपनो रिफ्लेक्ट हो तो होए, वो हमारो धर्म कह हो जाएगा। जहां हमारो दास धर्म रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हो, जहां हमारो स्वयं को अहंकार रिफ्लेक्ट हो रहे हो, वो धर्म नहीं कह जाए। एंड देयरफॉर वो चेष्टाएं अर्थ हमारो अर्थ सिद्ध नहीं करेंगी जो आगे है, एंड देयरफॉर वो अर्थ हमारो काम सिद्ध नहीं करेगा जो यहाँ काम कहो गयो है, एंड देयरफॉर वो काम
धर्म अर्थ और काम तीनों मिलकर हमारा मोक्ष सिद्ध नहीं कर सकेंगे जो यहां कहोगे, जो मोक्ष को स्वरूप यहां कहोगे। या लिए हमारी मन वाणी और देह की चेष्टा से यदि दास रूपता, दासत्व, दासपनो अगर झलक तो होए, वो सारी चेष्टाएं हमारे लिए निश्चित रूप से पुष्टि मार्गीय धर्म है। और उन चेष्टांशु जब हम हरि को अपनो सर्वस्व मानने लग जाएं, तो हम त्रिलोकी के कुबेर बन गए। अब क्या बाकी रहे? सब कुछ तो मांग, सब कुछ तो उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद, तुझे मांगने के बाद। तुझे सब कुछ तो मांग, वो शब्द अलग है, मांग लिया मान लो भी, सब कुछ तो मांग लिया है, तुझे मांगने के बाद उठते नहीं है अब हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तो जब हमने वाकु खुद को मांग लियो तो अब हमारे पास मांगने को कुछ भी शेष नहीं रहे। यानी हम या त्रिलोकी के कुबेर बन गए, क्योंकि हमने हरि को अपना सर्वस्व मान लियो। ध्यान करियो, मेरे वाक्य पे ध्यान करियो। हरि ने तो तुमको अपनो सर्वस्व वही दिन मान लियो जब तुमने तुम्हारा वर्ण भयो। यानी हरि को सर्वस्व तुमको माने भयो, ये तुम हरि को सर्वस्व नहीं मान पा रहे हो, वहां समस्या खड़ी हुई। अगर तुमको हरि ने अपना नहीं बनाया हो तो तुम यह मार्ग पे ही नहीं आते। यानी मैं बात ये कह रहे हो, तुम हरि को अपना सर्वस्व मान लो, बस दैट्स ऑल, वो अर्थ। और तुम्हारी इंद्रियन में हरि संबंधी तृप्ति जब तुम्हारी इंद्रियां ढूंढने लगे, आंख कहीं हरि के रूप को ढूंढ पावे, कान कहीं हरि की लीलान को ढूंढ पावे, नाक कहीं हरि संबंधी सुवास को ढूंढ पावे, जिह्वा कहीं हरि संबंधी उच्छिष्ट को ढूंढ पावे, जूठन को हरि की, ऐसे हर इंद्रिय हरि संबंधी कुछ इन सारी अपनी तृप्ति को ढूंढ पाती हो, वो तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। और ऐसो हर चेष्टा में झलक तो भयो दासत्व, हमारी सर्वस्व दौलत जा दिन हमने हरि को मान लिया वो हमारो अर्थ। और हमारी हर इंद्री कहीं ना कहीं हरि के संबंध में अपनी तृप्ति खोजने लग जाए, ऐसे काम, इन तीनों से मिलकर जो बात सिद्ध होगी वो बात ये होगी कि हरि अपनो ध्रुव बन के रह जाएगा और हम हरि के ध्रुव बन के रह जाएंगे। जसु बड़ो जगत में कहीं कोई मोक्ष नहीं। जब कृष्ण तुम्हारो बन के रह जाए और तुम कृष्ण के बन के रह जाओ, बस वो तुम्हारे लिए मोक्ष है। जीत